Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I am here Anam Fida with our new topic in macroeconomics. Our new topic is the aggregate supply curve. Today I will study you about the aggregate supply curve, what is the aggregate supply curve, and in short run and in long run what was the ideas of the classicals and Keynes about the aggregate supply curve, and what is the conditions that shift the aggregate supply curve, and etc. All these topics I will covered in this topic. Today I will describe to you about the aggregate supply curve, and I have described you about the supply. What is the supply? In first semester in microeconomics we have studied about the supply. As we have studied about the demand and after that we have studied the aggregate demand. Like this we are today studying about the aggregate supply, while we have studied the supply, only supply at micro level in microeconomics, while we are going to study about the aggregate supply curve in macroeconomics at macro level. And hence my name is suggesting that aggregate, what is the meaning of aggregate, and what the refer aggregate. Aggregate refers to the whole economy as a whole, when the economy as a whole is covered in any variable, macroeconomics variable. Hence the supply is the macroeconomics variable. And we will study aggregate supply. Aggregate supply, first of all, its definition is aggregate supply is the total supply. All of the words here are important, and use all of the words for describing and explaining the aggregate supply. Aggregate supply is the total supply. Total supply of goods and services available to our domestic market. The other important word is the domestic market. This is declaring that it's not the supply of at international level. It is the only supply of at national level. Is the total supply of goods and services available to our domestic market. It's mean that कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो टोटल सप्लाई है जो कि डोमेस्टिकली यानी नेशनल लेवल पर हमारे पास अवेलेबल होती है. द अदर थिंग इज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स. अच्छा, सप्लाई मीन्स दैट सप्लाई इज द थिंग दैट ओनली सेलर्स आर सेलिंग. इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट प्रोडक्शन. द वर्ड सप्लाई and the production has opposite meanings in their real terms. That means that producer only produce and make productions, while the supplier only buy from the producers and then will sell at the market. Hence the supply is that supply that is available on market. And here we are going to study the aggregate supply, that is the aggregate supply that is available in the domestic market. Hence that domestic market may be the American domestic market, it may be a Pakistani market, and it may be a Indian markets. This is the only at national level within the boundary. It is the available supply at domestic market for selling, and it is available from the producers to selling फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. यानी कि इसको हम काउंट करते होते हैं. मोस्टली ऐसा होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट लेवल पर यानी कि लॉन्ग टर्म में या फिर एग्रीगेट लेवल पर जितने भी वेरिएबल्स को काउंट करते हैं उनको ऑलमोस्ट एक साल के दौरान ये में उसको ना काउंट करते हैं. फॉर एग्जांपल हम जीडीपी को अगर मेजर करते हैं तो उसको हम एक साल के दौरान हमारी जीडीपी यानी कि प्रोडक्शन कंट्री में कितनी है हम उसको मेजर करते होते हैं. इसी तरह से हम मोस्टली हर जगह पर ऐसा ही है कि साल का दौरानिया यूज़ करते हैं क्योंकि ईयरली ही इसकी ना अकाउंटिंग होती है. फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड यूजुअली आ ईयर. अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो कि आ रही है, फर्म्स आर विलिंग. इसकी हमने बात की थी डिमांड में कि डिमांड क्या होती है. डिमांड होती है विलिंग एंड एबल टू परचेज.
ख्वाहिश करना डिमांड नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल इट्स माय विश दैट आई विल परचेज एप्पल 11 प्रो, तो ये कोई मेरी वो नहीं है, जबकि वाइल आई हैव नो मनी इन माय पॉकेट इनफ फॉर परचेजिंग द आईफोन एप्पल 11 प्रो, it's not a demand. Demand is that when we are able to purchase, it means we have enough money for purchasing that thing in our pockets, and able to purchase and willing to purchase. able तो हैं लेकिन क्या लेना भी चाहते हैं, ये दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। लाइक दैट, सेम लाइक दैट वी आर यूजिंग द वर्ड हेयर दैट फर्म्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल, के फर्म सेल भी करना चाहती है, ये कंडीशन भी उसके साथ होना चाहिए। एंड कैन परचेज, कैन बाय, बाय मीन मैंने आपको आई थिंक ये बात क्लियर की थी कि कंजम्पशन वो होती है जो हम परचेज करते हैं और उसको कंज्यूम कर लेते हैं, जबकि आगे सेल नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मैं कंजम्पशन की बजाय बाय का वर्ड यूज़ कर रही हूँ। बायर वो होता है जो प्रोडक्शन से प्रोड्यूसर से प्रोडक्शन ले रहा है और उसको आगे मार्केट में सेल कर रहा है, या फिर वो बायर भी हो सकता है, वो सेलर भी हो सकता है। तो बायर है उस टाइम जब वो कहीं से बाय कर रहा है, वो कंज्यूम नहीं कर रहा, बाय कर रहा है। और जब वो वहाँ से बाय करता है और उसको आगे सेल करता है, उसके लिए ये कंडीशन है कि वो विलिंग भी होना चाहिए और एबल भी होना चाहिए, यानी इस काबिल हो कि वो उसको ले भी सके, उसके पास इतना मनी भी होना चाहिए। एबल टू सेल एट ए गिवन प्राइस, यानी कि उसी प्राइस पर जो उसकी उस टाइम में चल रही है मार्केट में, एक प्राइस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान में, यानी कि उस साल के दौरान में चल रही होती है। जैसे कि 2019 का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो उसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू 2020। 2020 की निस्बत 2019 की प्राइसेस को आप कंपेयर कर लें, आपके सामने है। 2020 आई होप सो कि एक इन्फ्लेशन का ईयर चल रहा है, इसमें इन्फ्लेशन ही चल रही है हर तरफ, जबकि 2019 में एज़ कम्पेयर टू 2020 इन्फ्लेशन नहीं था, यानी कि इसके मुकाबले में इतना इन्फ्लेशन नहीं था। तो इसमें ये है कि अगर इसको अब हम देखते हैं इसके मुताबिक, तो इस साल में प्राइसेस और हैं और 2019 में और थी, 18 में और थी, 17 में एंड ETC। जैसा कि हमें हमारे बड़े बता रहे होते हैं कि हमारे दौर में रुपये नहीं बल्कि पैसा यूज़ होता था। पैसे यानी कि 16 पैसा, 8 पैसा, जिसको आपके बड़े बता रहे होते हैं आने की सूरत में, कि आने यूज़ होते थे, 16 आने या फिर 8 आने, इस तरह से। रुपया जो होता है वो उनसे बड़ा होता है। तो इसी तरह से वो उस दौर को वो कहते हैं कि वो एक सस्ता दौर था और उस टाइम प्राइसेस वो हुआ करती थी। लेकिन अब इस टाइम में प्राइसेस ये हैं जो कि अब चल रही हैं। जैसे जैसे एक और चीज़, जैसे जैसे इसमें प्राइसेस ज़्यादा होती हैं ना, वैसे वैसे इसकी जो है मनी की वैल्यू कम होती जाती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ है, जैसे एप्पल ले लें कि एप्पल पहले मिला करते थे जी 50 रुपीज़ पर केजी। उस टाइम 50 रुपीज़ की अहमियत ज़्यादा थी, लेकिन अब जब वो मिल रहे हैं 200 रुपीज़ पर केजी, तो 200 रुपये की जो वैल्यू है वो कम है एज़ कम्पेयर टू 50। उस टाइम के दौर की बात करें कि उस टाइम ऐसा होता था। तो जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं, यानी कि पैसा बढ़ा दिया जाता है और किसी भी चीज़ की इंक्रीज़ करते हैं प्राइसेस या रेंज बढ़ा दी जाती है, तो उसमें ये होता है कि वो जो पैसा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से इसको हम मज़ीद डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन में भी देख सकते हैं, यानी कि एक्सचेंज रेट के मुताबिक भी, कि एक्सचेंज करते हुए रेट में किस तरह से ये चल रहा है, यानी कि कितने डॉलर के बाद कितने प्राइसेस जो पाकिस्तानी रुपये हैं वो कितने डॉलर के इक्वल हैं, उस टाइम भी इसकी वैल्यू को साथ ही लेके चल रहे होते हैं। यानी कि जस्ट मनी को नहीं देखना होता, ये जो हमारी प्राइसेस होती हैं और जो मनी है, रुपये है, रुपये की वैल्यू भी साथ साथ इसके चलती है। अच्छा, इसके अलावा मैं अब आपको बताती हूँ कि क्लासिकल के अकॉर्डिंग एग्रीगेट सप्लाई क्या था और इसके अलावा कौन था क्लासिकल के साथ, केनीजियन। न्यू क्लासिकल के बाद कौन आया था, केनीजियन। तो कीन्स के मुताबिक इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये बात क्लियर है कि क्लासिकल क्या कहते थे,
सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। क्लासिकल का बस यही एक सेंटेंस था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेती है। तो इस चक्कर में वो हमेशा इस चक्कर में रहते थे कि सप्लाई मतलब इंक्रीज़ ही करते जाते थे। वो कहते थे बेफिक्र हो के बस जी प्रोडक्शन करते रहो, फिर इसकी डिमांड इंक्रीज़ होती रहेगी। मैं फिर यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगी ग्रेट डिप्रेशन को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। सप्लाई बढ़ती गई थी, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं थी, बैंकरप्सी आ गई थी, और बैंकरप्सी के बाद ना बैंक्स में मतलब ना कोई लोन ले रहा ना कुछ, और सारी चीज़ें अपनी जगह गल सड़ गई। इस तरह से हुआ था। ऐसा नहीं है कि कैद पड़ गया था, ज़ीरो हो गया, परचेजिंग पावर ज़ीरो हो गई थी, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं हो रही थी, जबकि वो कह रहे थे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था। फिर गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी पड़ी थी, और उसको मतलब ऐसे ऐसे टूल्स और पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को अपनानी पड़ी थी जिसके तहत वो सप्लाई उनकी जो है थी उसकी यानी कि डिमांड क्रिएट होती। खैर ये सारी बात की बातें थी जो कि उस टाइम हुई थी। तो अब हम उसी की बात कर रहे हैं क्लासिकल्स की, कि क्लासिकल्स के मुताबिक क्या था। हम क्लासिकल्स के मुताबिक लॉन्ग रन में बात करते हैं, एंड केन्स के मुताबिक हम बात करेंगे शॉर्ट रन में। अच्छा, पहले मैं क्लासिकल्स को आपका डिस्क्राइब करती हूँ कि ये लॉन्ग रन में क्या कह रहा है। लॉन्ग रन में क्लासिकल्स की ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डायग्राम थी कि सप्लाई जो है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, ये सप्लाई कर रहा है एग्रीगेट सप्लाई, प्राइस इज क्वांटिटी, कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में सप्लाई जो है इतनी ज़्यादा होती है। वो कह रहे हैं जितनी मर्जी प्राइस बढ़ा लो, बी कॉमन सेंस, हाउ कैन दिस पॉसिबल कि प्राइस जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ कम करते जाओ, सप्लाई बस जा ही रही है। यानी कि ये अगर एक टाइम में ये क्यू है तो ये बस कांस्टेंट है, इतनी ही सप्लाई है इस प्राइसेस पर। अच्छा, ये क्लासिकल्स कह रहे थे, लेकिन इसके अपोजिट अगर हम इसको देखते हैं केन्स की, अब हम बात करते हैं इसमें। केन्स को शॉर्ट रन में देखें, ये देखें, ये कह रहे हैं क्या, ये क्यों कह रहे थे, ऑब्वियसली इनने अपनी लॉजिक भी दी थी। ये कह रहे हैं कि लॉन्ग रन में क्या होता है, जो इनपुट की प्राइसेस होती हैं वो सेम होती हैं। इनपुट की प्राइसेस कैसे सेम होती हैं? लॉन्ग रन में मैं आपको बता चुकी हूँ, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, और शॉर्ट रन में भी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों की कंडीशंस जो है वो अलग-अलग होती हैं। लॉन्ग रन में क्या होता है, मोस्टली यही है कि ऑल कॉस्ट्स आर फिक्स्ड कॉस्ट, जबकि शॉर्ट रन में क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि उनको हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग रन में होता है वो सारी फिक्स आ जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब इनपुट की प्राइसेस ही फिक्स है, फॉर एग्जांपल लॉन्ग रन में ऐसा है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, एक ऑफिस बनाना चाह रहे हैं हम 1 साल के लिए, तो हमने एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया फॉर 1 ईयर। हमारा बिजनेस डबो जाए या फिर ज़्यादा चलता रहे, प्रॉफिट अच्छा आए या कम आए या फिर लॉस हो जाए, एट एवरी कंडीशन वो उस बिल्डिंग का रेंट हमने पे करना ही करना है। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इनपुट की प्राइसेस लॉन्ग रन में फिक्स होती हैं, तो ये कहना गलत नहीं है, इनपुट की प्राइसेस ठीक है यहाँ फिक्स हो गई। क्लासिकल को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखिए कि वो गलत है, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि क्लासिकल क्या कहते हैं, फिर केन्स क्या कहता है, क्लासिकल की बातों को वो केन्स कैसे करेक्शन में लाता है। अच्छा, क्लासिकल ने कहा जी इनपुट की प्राइसेस फिक्स है लॉन्ग रन में, मान लिया ऐसा ही होता है, तो ये कह रहा है कि इस टाइम में जब प्राइसेस फिक्स हैं तो फिर सप्लाई का स्ट्रेट वर्टिकल होगा, वर्टिकली। अच्छा, वर्टिकली है एग्रीगेट सप्लाई कर, वर्टिकली बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। और इसमें एक और चीज़ है, जब सप्लाई आपकी प्रोडक्शन होए जा रही है तब आपके पास क्या होगा, अगर हम इसको यहाँ पर मज़ीद क्लियर करने के लिए प्राइस को इधर ले लें, ये थोड़ा मैं आपको क्लियर करना चाहूँ, वरना हम यहाँ क्वांटिटी को लेते होते हैं, वेरिएबल को यहाँ पर लिया जाता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल इस तरह से चेंज हो रहा है कि क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, इधर मैंने y को ले लिया है, ठीक है। ये प्राइस एक फ़िक्स कर दिया है, अब आपको ये ज़्यादा आसानी होगी, प्राइस फिक्स कर दिया है, सप्लाई जो है यहाँ पर ले लें 1000 टन, 2000 टन, इस तरह से प्रोडक्शन होती जा रही है। फॉर एग्जांपल एक वीट की है,
तो ये इसके जो है लॉन्ग रन वाले इनपुट्स हैं, जो भी टूल्स हैं इसके, वो उनकी प्राइसेस फिक्स हैं, तो ये सारा इंक्रीज़ करता जा रहा है। ओके, अब इसके साथ ये है कि फुली एम्प्लॉयड, देखिए यहाँ पर सप्लाई हो रही है, प्रोडक्शन की जा रही है, लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं। दूसरी इसकी जो स्पेसिफिकेशन आती है फुली एम्प्लॉयमेंट, ज़ाहिर है जब सप्लाई हो रही है, प्रोडक्शन की जा रही है, तो लोग तो काम में झुके हुए हैं, काम किए जा रहे हैं। अच्छा, ये फुली एम्प्लॉयड होता है, और इस फुली एम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं नेचर लेवल ऑफ रियल जीडीपी, नेचर लेवल ऑफ रियल जीडीपी। इसका यानी कि जो कंसेप्ट है फुली एम्प्लॉयमेंट का वर्टिकली एग्रीगेट सप्लाई कर के साथ, उसे कह रहे हैं नेचर लेवल ऑफ रियल जीडीपी, यानी कि ये नेचर लेवल है, चलता ही जा रहा है। अच्छा, अब इधर हम केन्स की तरफ आते हैं। केन्स क्या कह रहा है? केन्स कह रहा है कि सप्लाई क्या होती है, मैंने आपको क्या बताई थी, थोड़ा सा आप रिमेंबर करें। सप्लाई में ये होता है कि जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं, सप्लाई इंक्रीज़ की जाती है, यानी कि मार्केट में अगर ज़्यादा प्राइसेस पर कोई चीज़ सेल हो रही है, तो हर बंदा यही चाहेगा ना कि मैं भी यही सेल करूँ, ये ज़्यादा प्राइस है इसकी, वो उसकी जो सप्लाई होगी इसको इंक्रीज़ करता है। लेकिन डिमांड में क्या होता है, जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं, डिमांड की क्वांटिटी कम हो जाती है, उसकी नेगेटिव स्लोप होती है, जबकि इसकी पॉजिटिव स्लोप होती है। पॉजिटिव स्लोप को लेते हुए केन्स कह रहा है, ये केन्स ने इंट्रोड्यूस करवाई थी कि यहाँ पर ये प्राइसेस, यहाँ पर ये क्वांटिटी, कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करती जा रही है। यानी कि अब जो सेलर है या फिर बायर है या फिर प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर है, वो वैसे वैसे अपना इंक्रीज़ करता जाएगा। यानी कि अगर ये P0 है, P1 है, P2 है, तो P0 पर जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो Q0 थी, और जब प्राइस इंक्रीज़ कर गई है तो उसने सप्लाई भी इंक्रीज़ कर ली है, ये Q1 है, और जब P2 चला गया तो यहाँ से क्वांटिटी भी Q2 पर मूव कर गया। इस तरह से ये सप्लाई कर, एग्रीगेट सप्लाई कर जो है केन्स के मुताबिक इस तरह से था कि शॉर्ट रन में ऐसा होता है, हम वेरिएबल्स को चेंज करते रहते हैं। तो ये अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो एग्रीगेट सप्लाई कर का एक जनरल वाला बनता है, वो क्या है, क्योंकि ये भी वैलिड था लॉन्ग रन के लिए और वो शॉर्ट रन के लिए। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास ये देखें केन्स वाला आ गया, ये केन्स वाला, उसके बाद ये स्ट्रेट आ गया इसका क्लासिकल का, ये आ गया केन्स का एग्रीगेट सप्लाई कर, और इस लेवल को मैच करने के लिए यहाँ पर ये इस गैप को मैच कर देते हैं कि जैसे जैसे सप्लाई बढ़ रही है, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, इसी तरह से यहाँ पर आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज, ये लॉन्ग रन में ऐसा हो जाता है, शॉर्ट रन में ऐसा चलता है। तो जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व का एक जनरल कर्व है वो ये है, ये आ गया केन्स वाला और ये क्लासिकल वाला। अच्छा, अब इसमें एक और बात ये है कि ये चेंज कैसे होगा, शिफ्ट कैसे होगा, इसकी अगर हम बात करते हैं शिफ्टिंग की, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को अलहदा करना चाहें तो अलहदा कर लें, वरना मैं इधर ही शिफ्ट कर दूँगी शॉर्ट रन और ये लॉन्ग रन। आप लोग दो डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, एक लॉन्ग रन वाली स्ट्रेट होगी, उसको आगे शिफ्ट करते जाएंगे, शॉर्ट रन वाली जैसे ये है और इसको अगर शिफ्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल GDP बढ़ गई है तो ये इस साइड पर शिफ्ट कर जाएगा AS0 से AS1 की तरफ, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसे GDP कम हो गया तो इधर शिफ्ट कर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर बात करेंगे कि विद कांस्टेंट प्राइसेस नो चेंज इन प्राइसेस, प्राइसेस हमारी कांस्टेंट है लेकिन चेंज इन GDP, चेंज को मैं डेल्टा से शो कर रही हूँ, ये डेल चेंज को शो कर रहा है कि प्राइसेस कांस्टेंट है, GDP चेंज हो रही है। GDP अगर डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीज, तो AS नॉट, इसको हम नेम करते हैं नॉट का, ये मूव कर जाएगा AS1 की तरफ। GDP डिक्रीज कर गई है, ये देखिए ये यहाँ से AS1 की तरफ मूव कर जाएगा। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि GDP इंक्रीज कर गई है, इंक्रीज इन GDP विल काज टू राइटवर्ड शिफ्ट AS0
टू राइटवर्ड एट AS2। ये देखें, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये AS2 है और यहाँ शिफ्ट हो गया GDP इंक्रीज़ करने की वजह से। और इसमें दो बातें आएंगी हमारे पास कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व चेंज क्यों होता है, शिफ्ट क्यों होता है। इसके लिए हम दो बातों को जहन नशीन कर लेंगे। एक ये है कि ये चेंज इन इनपुट की वजह से, अदर थिंग इज़ द इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, यानी कि काजेज़ की बात करते हैं। काजेज़ ऑफ शिफ्टिंग एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये शिफ्ट क्यों होता है, उसका ये है, द फर्स्ट काज इज ड्यू टू चेंज इन इनपुट प्राइसेस। इनपुट प्राइसेस चेंज होने से ये कैसे चेंज होगा? अगर ऐसा होता है कि प्राइसेस बढ़ गई हैं, सप्लाई लोग बढ़ाएंगे ना, सप्लाई बढ़ती जाएगी। इसकी शिफ्टिंग नहीं, बल्कि आप इसको यूँ कह लें कि चेंज हो रहा है, उसी पर ही ना रोटेट कर रहा है, शिफ्ट नहीं कर रहा बल्कि उसी कर्व के ऊपर चल रहा है। काजेज ऑफ मूवमेंट, शिफ्टिंग के लिए हमने GDP को यूज़ किया था। यहाँ पे हम बात करते हैं अगर मूवमेंट की, मूवमेंट विद इन कर्व होती है। अच्छा, यहाँ पर चेंज इन इनपुट प्राइसेस की वजह से, प्राइसेस अगर डिक्रीज़ कर गई हैं इनपुट की तो सप्लाई ज़्यादा होगी। इनपुट की प्राइसेस अगर डिक्रीज़ कर रही हैं तो सप्लाई ज़्यादा, अगर इनपुट की प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाती हैं, जाहिर है कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, प्राइसेस ज़्यादा लगेंगी तो लोग इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे। द सेकेंड थिंग इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। अगर आपका किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, यानी कि अच्छी ग्रोथ पर जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ शो कर रही है कि फ्रॉम इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई, के वहाँ का जो एग्रीगेट सप्लाई लेवल है वो भी ज़्यादा है, आराम से शो हो रहा है ना। तो और इसकी वजह से भी हमारा एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि यूँ समझ लें ये साइकिल है, एक दूसरे के साथ चलते रहेंगे कि यहाँ पर भी एग्रीगेट सप्लाई लेवल अगर ज़्यादा है सप्लाई, तो उसकी वजह से हम इकोनॉमिक ग्रोथ लेवल पे चल रहे हैं। लेकिन जब हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही होगी, अब हम लोग मोर एफिशिएंट हैं, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो अब भी हमारी सप्लाई ज़्यादा होगी। हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ टेक्नोलॉजी बेहतर हो, या फिर इस तरह की आप यानी कि एजुकेशन बेहतर हो, या फिर दूसरी इस तरह की चीज़ों को आप इसमें साथ लेकर चल सकते हैं। अच्छा, इसमें आप लोग ये बात देख लें कि जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई। उसमें हमने डिमांड के लिए y = C + I + G लिया था और उनको मेजर किया था। लेकिन जो एग्रीगेट सप्लाई है इसमें हमने केन्स का सप्लाई कर्व बताया है और क्लासिकल का सप्लाई कर्व, के उनके मुताबिक सप्लाई कर्व क्या है और उनके मुताबिक। This was the topic for today. It's enough for today. Inshallah we will meet in the next lecture with next topic, and still that, Allah Hafiz.